Yes, sir. I've done my graduation in economics and the economic background has given me an idea as to what financial and economic challenges India has and continues to face as a country and how their effect trickle down that hurts each strata of society. ठीक है? The paper of development economics especially drew my attention towards the social issues that keep certain sections economically backward, namely poverty, inequality, demographic concepts, birth death rates, age structure, fertility, and mortality. Demographic transition through during the process of development, gender bias in preference and outcome, and evidence on unequal treatment within households, connection between income, mortality, fertility choices, and human capital accumulation and migration. ये क्या मतलब एकदम तुम्हारे दिमाग में रहता है क्या इतने सारे वर्ड्स? हाँ सर, और फिर बुक भी थी मेरे पास. क्या था? बुक. अच्छा मतलब लिखते वक्त ना? हाँ जी. The most common example that we can witness in our daily lives is that the house helps and the maids that comprise the urban poor migrated from rural areas. Women amongst them are mostly child bride and young mothers with little or no education, living under very unkempt conditions with financial health crises and etc. challenges further to keep up with the life in the urban and ever rising expenses. Spending on all these gets reduced incessantly. Among such families, children are considered to be asset for excellence, and hence more the number of children means more earners and better support for the old age, which harms more than it does good, as these children are sent off to work at a very little age. So far, I have been acquainted with the economic concept of such schools. This course will lend me an insight on them from political, legal, social aspect as it provides introduction to constitutional foundation of state institution, links the state market with the economy. I also look forward to learn about structure of policies with policy analysis and data analysis with the statistics and research paper, and the field exposure will give an out of textbook experience. ये बहुत तुमने वो कर दिया इसको. कितने वर्ड्स में है ये? काउंट नहीं किया था सर. क्या चीज? काउंट नहीं किया था. अच्छा काउंट नहीं किया था, ठीक है. कितने वर्ड में लिखना होता है ये कुछ है उसमें मेंशन? 500 वर्ड्स है ना शायद? वो भी चेक नहीं किया. क्यों नहीं पढ़ते उसको? सी मैं तुम्हें एक आइडिया बताता हूँ, ठीक है? उस आइडिया के बेस पे थोड़ा रीराइट करने की कोशिश करो, ठीक है? लेट मी गिव यू एन आइडिया. तो जो तुमने लिखा है ना, तो उसी के पर्सपेक्टिव, उसी पे बेस पे हम इसको क्रिएट कर रहे हैं. तो व्हाट यू डिड इज इकोनॉमिक्स, ठीक है? यस सर. Economics, which made you eligible to understand socio-economic issues of India. ठीक है? हाँ जी. तो तुमने बहुत सारे नाम में लिखे हो. फिर तुम्हारा पेपर जो था डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, वो तुम्हारे सेम इंटरेस्ट को डिपेंड किया, ठीक है? विद फ्यू मोर इनसाइट्स. ठीक है, यहाँ तक ठीक है? हाँ जी. अब पॉइंट ये है कि नाउ यू वांट टू वर्क फॉर दोस इश्यूज. ठीक है? यहाँ तक ठीक है ना? अब हमारे पास दो चैनल्स है, ठीक है? वन, एज अ रिसर्चर
to know more about issues. About issues. क्यों जानना चाहोगे तुम? ये ऐसा नहीं कि तुम जानना चाहोगे, आप ऐसे रिसर्च करके गवर्नमेंट को दोगे या पॉलिसी मेकर को दोगे, है ना, so that these policy maker can use these research outputs in their policies. ठीक है? Yes, sir. Somehow, मतलब despite our understanding, despite our knowledge of economics, we still don't know what step of government works for what benefit, है ना, या how those two problems are related to each other, या अगर कोई बोले कि 10 प्रॉब्लम में से सिर्फ 2 प्रॉब्लम पे काम करना है, तो which could be that those two problems जहां पे हम काम करने से बाकी सारों पे ट्रिकल डाउन इफेक्ट पे असर पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी होती है, रिसोर्स का क्रंच होता है, एंड देयर इज अ टाइम लिमिट और रिसोर्स लिमिट आल्सो. तो हम ऐसे कौन से इशू पे, जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना, एजुकेशन इज द फॉरमोस्ट कंसर्न. अगर आप एजुकेशन पे काम करते हो तो कई सारे सोशल इश्यूज अपने आप वो हो जाएंगे. Yes, sir. है ना, बट क्या प्रॉब्लम क्या है उसके साथ, बिकॉज एजुकेशन अपने आप में, एजुकेशन के प्रॉब्लम को इरेडिकेट करना बहुत बड़ा वो है ना, टास्क है, विच कैन नॉट बी डन वेरी इजी और बड़ा शॉर्ट टर्म में नहीं हो सकता. तो हमें बाकी सारे प्रॉब्लम्स भी अलग अलग काम करना पड़ता है. तो एक तो ये है. दूसरा ये, यू ऑल्सो रियलाइज्ड कि इकोनॉमिक्स जो है इन इटसेल्फ आइडिया ऑफ सॉल्यूशन तो देता है, बट स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशंस में काम नहीं कर पाते हम. Yes, sir. क्यों? स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन जो है बिल्कुल फील्ड ओरिएंटेड होगा, या मतलब फील्ड ओरिएंटेड कहने का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक्स का जो सॉल्यूशन है वो एक जेनरिक सॉल्यूशन होगा. जब आप उसको इंडिया में इंप्लीमेंट करोगे तो उसका फॉर्मेट अलग होगा, और आप उसको किसी दूसरे कंट्री में अगर इंप्लीमेंट करोगे उस सॉल्यूशन को तो उसका फॉर्मेट दूसरा होगा, है कि नहीं. तो जो स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन है, इट हैज गॉट लॉट्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, और इसमें गवर्नमेंट और कॉम्प्लेक्सिटी को डील करने का एक जो तरीका है, स्ट्रेटजी मेकिंग, यहीं पे यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग कहलाता है. ठीक है. Yes, sir. सो यू वांट टू शिफ्ट इन दिस डोमेन, पॉलिसी मेकिंग वाला. ठीक है. Yes, sir. तो देन जब यहाँ पे जाओगे, जब ये पढ़ोगे, तो व्हाट विल यू बिकम, क्या बनोगे फिर तुम बनोगे, या क्या कैपेबिलिटी डेवलप होगी, तो तुम पॉलिसी मेकिंग का नो हाउ समझोगे. ठीक है. Yes, sir. फिर इंडियन पर्सपेक्टिव में क्या कंसर्न चीजें हैं पॉलिसी मेकिंग में, वो समझोगे. ठीक है. Yes, sir. फिर पुराने पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन, केस स्टडीज, ये देखोगे. ठीक है. Yes, sir. इससे क्या फायदा होगा, यू विल बी नोइंग व्हाट आर द क्रिटिकल फैक्टर्स फॉर सक्सेस और फेलियर्स. ठीक है. हाँ जी. फेलियर का स्पेलिंग देख लेना. ठीक है. तो ये भी समझोगे. तो ये सब आपका वहां पे फोकस एरिया है ना. रिसर्च आप करना सीखोगे पॉलिसी रिलेटेड. ठीक है. फिर पॉलिसी की एनालिसिस करना सीखोगे. ये बात समझ में आ रही है. ये तुम्हारे सब लर्निंग्स हैं. तो जब ये लर्निंग कर लोगे तो यू विल बिकम अ प्रोफेशनल पॉलिसी मेकर, या नॉट पॉलिसी मेकर ऐसे नहीं बोलो, प्रोफेशनल इन पॉलिसी मेकिंग. ठीक है. Yes, sir. और फिर इसका एडवांटेज क्या मिलने वाला है तुम्हें, क्या एडवांटेज मिलेगा बताओ. क्यों पढ़ रहे हैं हम ये कोर्स. एक तो तुमको लालच ही नहीं है किसी चीज का, बोलो क्या एडवांटेज मिलेगा. ये सब लर्न करने के बाद, सीख लेने के बाद क्या एडवांटेज मिलेगा.
पॉलिसी मेकिंग में जॉब। हाँ, मतलब जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में इस स्किल की जरूरत होगी, दे विल लुक फॉर यू, है कि नहीं? यस सर। तो एडवांटेज क्या है? गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, कॉरपोरेट्स, थिंक टैंक्स, इन सब जैसी जगहों पे, है ना, वेयर देयर इज नीड, यू कैन पिच योरसेल्फ कि हम कर सकते हैं वो काम, ठीक है कि नहीं? यस सर। तो ये जो है, अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स का, ये तुमसे सिंक हुआ क्योंकि यू हैड एन ऑप्शन टू डू इकोनॉमिक्स आल्सो अहेड, है ना? यू यस हैड एन सर। ऑप्शन टू रिसर्च इन द सेम, जो कंसर्न का सब्जेक्ट है तुम्हारा, वहां पे भी तुम रिसर्च कर सकते थे, बट यू रेदर वेंट फॉर, या यू रेदर विल लुक फॉर एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग, कि हम इशू को रिजॉल्व करने में पार्टिसिपेट करें, यस। ठीक है? तो ये पूरा चेंज समझ में आ गया तुम्हें? हाँ जी। नाउ write your SOP with this perspective. थैंक यू ठीक सर। है, 3 चीजें हैं, यहाँ तुमसे लिंक हुआ, यहाँ हम क्या क्या पढ़ेंगे वो बताए इस जगह पे, और यहाँ हमें क्या एडवांटेज मिल रहा है, और लॉन्ग टर्म गोल क्या हो सकता है? यू विल बी एन ऑथोरिटेटिव पोजीशन, या फिर यू विल बी एन अ पर्सन टू बी नोन एज, कि हाँ ये पॉलिसी मेकिंग में हम करते हैं। अगर ज्यादातर तुम्हारा डेवलपमेंट रिलेटेड या सोशियो इकोनॉमिक बेस्ड पॉलिसीज की बात है, तो वो अपने आप ही इसमें तुम्हारा आ गया, तुम्हें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि व्हाट विल बी योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन पॉलिसी मेकिंग, ठीक है? यस सर। अब इसी बीच में वो जो थोड़ा बहुत टर्म्स तुमने देखे थे या डाले हो, वो डाल सकते हो, ठीक है, while writing these। थैंक यू सर। ठीक है, चलो अब इस तरह से लिख के मुझे आज भेज दो, तो मैं देख लूंगा। ठीक। ठीक है, तो चलो फिर डन, ये क्लास का ओवर करते हैं हम। ओके, ये कुछ पूछना है किसी को?